कि आज की बड़ी खबर जो नेपाल से है उसे लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ गया है। ये अपडेट आपको बता दें, दरअसल नेपाल में देखिए पिछले 5 घंटे से बातचीत जारी थी। ये बातचीत जेनजी और सेना के बीच चल रही थी और इस बातचीत में एक चेहरा जो निकलकर सामने आया है। अब सवाल ये है कि क्या ये वो चेहरा होगा जो यहाँ की परिस्थितियों को आगे एक बेहतर दिशा में ले जाते हुए आपको दिखाई देगा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की, जस्टिस सुशीला कार्की जो ये नाम है, उन्हें लेकर ये सवाल इस वक्त इसलिए कि क्या वो नया चेहरा होंगी, क्योंकि कम से कम बड़ी खबर जो यहाँ पर आ रही है उन्हें लेकर चर्चा जो है, सरकार को लेकर उनका क्या मत है, ये सब भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या वो अंतरिम सरकार को लीड कर सकती हैं, क्योंकि उनका चेहरा एक विश्वास के साथ सामने आया है जो जेनजी ने उन पर भरोसा दिखाया है। तो बातचीत को उन्होंने लीड किया है, लेकिन इसके साथ साथ अंतरिम सरकार का हेड बनने पर भी, अध्यक्ष बनने पर भी उन्होंने सहमति जता दी है। इसीलिए अब आंदोलनकारियों और जो नई सरकार वहां पर बनेगी उनके बीच जो विश्वास की एक कड़ी है उसके रूप में आपको पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की दिखाई देंगी। और इस बीच देखिए, जस्टिस सुशीला कार्की का नाम जब इस वक्त सुर्खियों में है तो एनडीटीवी इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको दिखाने वाली हूं। हमारी सहयोगी सिक्ता देव जो ग्राउंड से लगातार आपको अपडेट कर रही हैं, उन्होंने कल जस्टिस सुशीला कार्की से खास बातचीत की। The protests of the young agitators are on the Kathmandu roads, and joining them is former Chief Justice of Nepal, Sushila Karki ji, who's with us right now. Justice Karki, the protest is on, the curfew is also on. There were several killed and many more injured. What do you think? Is government going on the right track? The government persons who are, they are allowed to do the legal work. This is a criminal work of government, I have seen in that this must not have to be yesterday, because neither Hitler had did such kind of action in his time. Hitler had not put children on the gas chamber, nor our ex-ruler, Rana ruler, have killed any child or hanged any child. You think the atrocities took place on the streets of Kathmandu yesterday, but the protesters here are saying it's not about the social media ban. It is about the corruption, the economic crisis of the country. Everything. This is the movement we have felt. This is the movement against corruption. This is the movement against the ban. This is the movement of the monopoly of the government. This is the movement of the not applying the rule of law in this country. And each and every people who are fighting here, they are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a labor. And they are earn a living abroad. So the government has also appealed to the protesters to take back their protest marches, and also reassured that whatever happened yesterday will be investigated and a report will be given in 15 days. Is it convincing enough? No. This is out of, because yesterday they should not have to, have to use the guns and bullet, This not have to be done. It shouldn't have happened. And this is enough. Because these children actually what they were demanding, they were on a silent movement. They were in a peaceful movement, because I can prove it that no student have any kinds of arms, lathi, nothing in their hand. So what's the way forward? My last question, what is the way forward? Because things are going out. The thing is, this government should be collapsed. They should step down. But who leads the country then? The youth New generation, youth. But do they have leaders? Do they have people who can lead them? Youth means not these are also. They are also below the 40s, below the 45s, and below the 50s. The younger politicians should lead. Yeah. They should lead, and they can do. These all are out of date. They have no any vision, no education. However, they have education, maybe certificate.
but they does not seem they educated. You are equally disillusioned like these Gen Z and the young protesters? Yeah, yeah. You are equally disillusioned by the government? Yeah, I support this movement because not yesterday, from today I am supporting this movement because they killed our children. Innocent children they have killed. This is a, I mean, this is, they killed our children. Look at, more than 20 people, 20 child they died. What is going on the mother and the father? What the condition? We ourselves have. You are with the families who have lost their Yeah. I myself had not get sleep at night, all night, you know. I became so, I was feeling that I should have to cry. This is enough against the people. तो जस्टिस सुशीला का जवाब सुन रहे हैं, बड़ा क्लियर कट वो ये कह रही हैं कि यूथ जो है वो लीड करेगा, यूथ होगा वो चेहरा जो सरकार के चेहरे के रूप में आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सहमति भी जता दी है कि अगर सरकार को लीड करना है तो वो चेहरा हो सकती हैं। लेकिन देखिए, ये सवाल हो सकता है आपके मन में भी होगा कि ये बातचीत की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, किस तरह से तय हो रहा है कि कौन आगे बढ़कर सरकार की जो चाबी है किसके हाथ में होगी, कौन वो बड़ा चेहरा होगा और इस पूरी बातचीत को कौन लीड कर रहा है, सेना के साथ ये कम्युनिकेशन किस तरह चल रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं विजय शाह, उनके साथ एक खास बातचीत है जिसमें उन्होंने पूरी ये डिटेलिंग बताई है कि ये बातचीत आखिर किस तरह से आगे बढ़ रही है। विजय जी, क्या चल रहा है अंदर? जो आप लोग गए थे, क्या बातचीत हुई, आर्मी चीफ का कहना क्या था और कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी? नमस्ते सभी लोगों को। तो गए थे, बात हुआ क्योंकि अभी नेपाल में बहुत भयावह स्थिति है। जो आंदोलन हुआ 2 दिन का, 21 लोग शहीद हुए। सो अभी बात क्या हुई कि अभी हमारा चीफ जो है, आर्मी चीफ, वो सरकार बनाने के सोच रहे हैं। तो सरकार बनाने के सोच रहे हैं। आज सुबह से 6 बजे से लगभग जो पार्टी का नेता है वो भी आ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज एंड ऑल द जेंजीज हैव आल्सो फॉर्म्ड डिफरेंट ग्रुप। सो जो रियल जेंजीज है वो उसको हम समझेंगे, क्या उसका मुद्दा है वो एड्रेस करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे बोल रहे हैं। तो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगी? कौन चेहरा है जो अगला प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन कौन चेहरा पे बातें चल रही है? सो यही बात हुई कि सर बोल रहे थे कि अभी जो युवा आ रहा है सबका समस्या एड्रेस करेंगे और इसके बाद उसमें भी कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। सबके सहमति से, जनजी के सहमति से और जितना जनता का, जो नेपाली जनता का जो समस्या था, जो करप्शन का समस्या था, उसको इसके लिए जो आंदोलन हुआ 15 वर्ष तक जो दमन हुआ नेपाली जनता पे, वो नेता सब कुशासन किया। सो इसको लेकर के अभी बालेन शाह जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है वो अगाड़ी आए, उससे भी वार्ता होगी कल, सर ने बताया। और जो भी कुलमान घिसिंग के है, हमारा हरकत साम्पांग के है, वो सब आए, मिले और एक को आगे बढ़ाए और उसको साथ दे। दूसरा नाम जो है पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो है सुशीला कार्की भी है। केपी शर्मा ओली ने गलती क्या कर दिया, वो रिजाइन तो किए प्रधानमंत्री से, मगर वो संसद डिसॉल्व नहीं करने के कारण से ये समस्या हो सकता है कि सरकार ना बने कल। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। मतलब प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेगी। अगर सहज तरीका से समाधान नहीं निकला तो आर्मी जो है कर्फ्यू लगाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, उसके बाद जो है इशू को जो है सेटल डाउन करने की बात होगी। तो और एक चीज़ सवाल करना चाहता हूँ, जो जेनजी पुस्ता के जो मूवमेंट थे, जो विद्रोह है हुआ, ये विद्रोह जो है शुरू में शांतिपूर्ण दिख रहा था, लेकिन बाद में ये जो है एक किस्म का जो है माहौल तीसरा हो गया, राष्ट्र का बहुत सारे संपत्ति नष्ट हो गए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? राष्ट्र का संपत्ति तो नाश हुआ, अब युवा है, युवा का जो फ्रस्ट्रेशन था वो निकल के आया और वो हमारा 3 बजे तक, जो सुबह दोपहर के 3 बजे तक है, सब कुछ सामान्य था। हम लोग सामान्य से आंदोलन कर रहे थे, अपने अपने घरों से निकल के आंदोलन कर रहे थे। जेनजी सब बच्चे हैं, वो एग्रेसिव नहीं होंगे, मगर जो घुसपैठ था वो सब मिलके क्या किया, ये आंदोलन को आगे बढ़ाए और ये सब आगजनी किए हुए हैं। आप सहमत है जो इस आंदोलन में घुसपैठ हुआ और उसी के कारण से ज्यादा क्षति हुआ? घुसपैठ हुआ, जो पार्टी का लोग थे वहाँ पे वो सब अपना आदमी पठाया और वो सब जाके वो सब किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, थैंक यू। तो कुल मिला के बात यह है, अगर सहज तरीका से निकास नहीं निकलते तो आर्मी इमरजेंसी लगा के इस सिचुएशन को हैंडल करेगी और नया सरकार बनाने की दिशा में ये आगे बढ़ेगी। एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है।
देखिए, एक सवाल बार बार नेपाल को लेकर यह भी उठ रहा है कि जो परिस्थितियां वहां पर अभी हुई हैं, तख्ता पलट हो गया, अब नया चेहरा कौन होगा, ये सवाल है। लेकिन इन सबके बीच नेपाल में लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था, और उस समय जो वहां पर राजा रहे हैं या जो वहां का राजतंत्र रहा है, वो अभी कहां पर है, क्या उनकी कोई भूमिका हो सकती है, ये सब सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ स्वतंत्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता, स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली जनता की सुरक्षा की बात करते हुए नेपाल की सेना जब राष्ट्र के नाम संदेश दे रही थी, तब पीछे एक खास तस्वीर दिखी। ये तस्वीर है नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जो संकेत दे रही है कि नेपाल में राजा का शासन लौट सकता है। दरअसल इसी साल मार्च के महीने में एक और संकेत मिला था, जिससे ये लगा कि नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है। राजशाही के समर्थन में सड़क पर उतरे लोगों ने राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगाए थे। उस वक्त भी राजशाही के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए तब के प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग की थी। नेपाल में एक बड़े वर्ग का ऐसा मानना है कि राजशाही के दौर में देश में सुरक्षा और स्थिरता थी। देश की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जोर शोर से राजशाही वापस लाने की मांग कर रही है। इसी क्रम में मार्च में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे तो हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मई के महीने में ज्ञानेंद्र शाह ने परिवार के सदस्यों और अपने पोते के साथ नारायण हिती शाही महल का दौरा भी किया और महल में पूजा की। नेपाल का रिश्ता राजशाही की तरफ, क्योंकि अभी जेन जी जो मूवमेंट है ये और बढ़िया लोकतंत्र के लिए है। वो लोग को क्या लग रहा है कि जैसे राजशाही के बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया उसमें भी लीडरशिप इस तरह राजशाही की तरह व्यवहार करने लगा, तो उससे ये पूछता नाराज था। इसीलिए उन लोग का कहना था कि लीडरशिप शुड बी ट्रांसपेरेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अपना जो भी टैक्स पेयर का पैसे है वो अच्छे तरह से मोबिलाइज करने वाला लीडरशिप का है। मीडिया में पिछले कुछ दिनों आई खबरों के मुताबिक नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने दर्जनों मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया और आम लोगों के बीच जाकर नई संभावनाओं को भांपने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र शाह मुख्य धारा में वापसी चाहते हैं। माना जाता है कि राजमाता रत्ना पुराने शाही महल परिसर के महेंद्र मंजिल पर रहती है, जबकि शाही परिवार के कुछ युवा सदस्य नेपाल छोड़ चुके हैं। पूर्व युवराज पारस और राजकुमारी हिमानी की बेटी राजकुमारी कृतिका शाह परिवार समेत सिंगापुर में बस गई। उनकी बहन राजकुमारी पूर्णिका भी सिंगापुर में है। जो भी हो, नेपाल में जो तूफान उठा है उसके शांत होने के बाद राजशाही की भूमिका सामने आने से इनकार नहीं किया जा सकता, खास तौर पर तब जबकि 2008 में राजा का शासन खत्म होने के बाद 17 वर्षों में वहां 14 सरकारें बदल चुकी हैं। तो देखिए, नेपाल में हुई जेनजी क्रांति को लेकर चर्चा पूरी दुनिया में भी है। विदेशी मीडिया ने इस पर क्या लिखा है ये भी आपको सुनाते हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन ओली के इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश था। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पीएम को पद से हटा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया, सोशल मीडिया बैन के विरोध में 19 लोगों की जान चली गई। वहीं द गार्जियन ने लिखा कि नेपाल में आंदोलन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का परिणाम है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि नेपाल के युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर नाराज थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है कि लोग पहले से गुस्से में थे, सोशल मीडिया बैन ने आग में घी का काम किया। टाइम मैगजीन के मुताबिक नेपाल के आधुनिक इतिहास में यह सबसे व्यापक विरोध था। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि सरकार की नीतियों से असंतुष्टि इतने बड़े आंदोलन की वजह बनी। स्वीडन की मीडिया ने लिखा कि जेनजी का संसद भवन पर कब्जा एक अस्थिर राजनीतिक संकट की शुरुआत है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको काठमांडू से एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी सहयोगी सिक्ता देव ने वहां पर जो हालात देखे, देखिए इस रिपोर्ट में।
इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर कुछ इसी तरह का नज़ारा है। आज सेना के कंट्रोल में ये पूरा देश आ चुका है और शांति बहाली की कोशिश में अब सेना लग गई है। ज़रूरत है इस वक्त की जल्द से जल्द यहाँ पर शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और यही इस वक्त प्राथमिकता है नेपालीज आर्मी की। और आर्मी चीफ ने लगातार अपील की है प्रदर्शनकारियों से कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अब नुकसान ना पहुँचाएँ और कोशिश करें आम जनता अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आज कर्फ्यू है इसलिए हम इस साइकिल रिक्शा पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि जो 4 व्हीलर्स हैं, जो टैक्सीज़ हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही पर मनाही है। आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल सुनसान है। जो स्थानीय यहां आसपास रहते हैं अपनी ज़रूरत के लिए वो घर से निकल रहे हैं और वो भी अपने 2 व्हीलर्स पर, बाइक्स पर। सेना सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही है, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बाय फुट और लाउडस्पीकर के ज़रिए अपील की जा रही है कि आप सहयोग करें और शांति बहाली की इन कोशिशों का साथ दें। बिकॉज़ ज़रूरत ये इस वक्त यही है कि जो आंदोलनकारी हैं, जो उनका मकसद था, जो पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो उनकी नाराज़गी थी, गुस्सा था, वो दूर हो चुका है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने इस्तीफ़ा कल ही दे दिया और जो सरकारी संस्थाएं थीं उस पर जिस तरह से निशाना बनाया गया था इन प्रदर्शनकारियों द्वारा, वो अब उस पर एक तरह से कंट्रोल आर्मी का आ गया है। और आइए नेपाल से बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। देखिए, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, ये तो तय हो गया है, लेकिन ये चुनाव किस वजह से विवाद में भी आ गया, जिसमें केंद्र में है क्रॉस वोटिंग। किसने क्रॉस वोटिंग की, क्या हुआ एग्जैक्टली, आइए देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले साबित हुए। एनडीए को उसकी ताकत से अधिक वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजय घोषित हुए, जबकि इंडिया ब्लॉक को उसकी ताकत यानी 315 की तुलना में 300 वोट ही मिले। आखिर ये हुआ कैसे, जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एनडीए के पास अपने वोट 427 थे, वाईएसआरसीपी के 11 वोट और मिले। इस तरह 438 का आंकड़ा बनता था, लेकिन वोट मिले 452, यानी 14 वोट अधिक मिले। यानी एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। 15 वोट निरस्त होना भी विपक्ष पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जयराम रमेश ने 315 का दावा किया था, लेकिन विपक्ष को मिले सिर्फ 300। देखिए, हमें भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है कि एग्जैक्ट कितना नंबर का क्रॉस वोटिंग हुई है। और देखिए, वो तो आप वोटिंग देखो तो वो सीक्रेट बैलेट है, तो सीक्रेट बैलेट में किसने कैसे क्रॉस वोटिंग किया इसका अंदाज कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हमें आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को विपक्ष भी मानता है और आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि विपक्ष भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी के इस नए भारत को सम्मान करता है। आज जो रिजल्ट आया है ऐतिहासिक है, काफी लोगों को सरप्राइज हो गया, विदेशी ताकतें भी हिल गई। ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उन पर विश्वास, उनकी ईमानदारी का विश्वास, उसकी जीत है। विपक्षी एकता तो मजबूत है। 26% थी विपक्षी एकता पिछली बार, अभी 40% है, तो विपक्षी एकता तो मजबूत है। सवाल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है कि उनका इनवैलिड वोट कैसे हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इनवैलिड कैसे हो सकता है वोट। आप इतने बड़े मंच के ऊपर बैठे हो, आप इतने बड़े सदन के अंदर हो और आपका वोट इनवैलिड हो रहा है, तो ये तो अपने ऊपर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कल चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया, उसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत हासिल हुई। 152 मतों से उन्हें जीत हासिल हुई। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट प्राप्त हुए, 300 वोट मिले। हालांकि एक दिन पहले तक जो इंडिया गठबंधन के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी और वो ये दावा कर रहे थे कि उनके समर्थन में 324 वोट हैं, 324 सांसदों का उनके पास समर्थन है। लेकिन कल जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ शाम 5 बजे, उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा कि इंडिया गठबंधन
को 315 सांसदों का समर्थन था और सभी सांसदों ने यानी 315 सांसदों ने वोट कर दिया है। तो वो ये दावा कर रहे थे कि उनके समर्थन के जितने भी सांसद हैं उन्होंने 100% मतदान किया है, लेकिन जब परिणाम आया तो वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 315 वोट भी नहीं मिल पाए। उन्हें केवल 300 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कल जो परिणाम आया उसमें 15 वोट अवैध भी करार दिए गए थे। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जितने सांसदों के समर्थन का दावा भी कर रही थी इंडिया गठबंधन, उतने वोट भी प्राप्त नहीं हुआ। और आइए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त एसआईआर को लेकर आ रही है, जो आज कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसे लेकर ये अपडेट है कि चुनाव आयोग के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में इसे एक साथ किया जाए। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। एसआईआर जिसे लेकर बिहार में बड़े सवाल थे, लेकिन देश भर में एक साथ किया जाएगा। एसआईआर को लेकर जल्द ही अब इस विषय पर कोई अधिसूचना भी जारी हो सकती है। देश भर में एसआईआर को लेकर अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर अधिसूचना आ सकती है। आज सीईओ कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर जो चर्चा हुई उससे ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।